We can wait 2-3 minutes. I think Okay, such sir. Sunny is also going to join. Okay. Abhishek, kindly ping to Sunny, Okay, okay. okay, so he can join the group. Yes. Uh, is Sunny is there? Abhishek, Gaurav. Yes, sir. I think he is in. Yes, sir, he will. Ashish, uh, Ashish or Sunny is there? Hello. Yes, sir. It's Sunny. It's the Sunny, sir. Okay, okay, okay. Yeah. Hello, sir. Good morning. Good morning. Okay, guys, I'm gonna record this session as well. Lavish is already doing a recording. Okay, so great. Before going to start this session, kindly one by one give a quick introduction, a short introduction. So I'll start from myself. My name is Pankaj, and I'm currently working in Optum, United Health Group, as a big data engineer and a data analyst over there. I have overall experience more than 7 years in this big data profile and more than 4 years in PySpark domain. Uh, and currently I'm in Rishikesh. Yeah, Gaurav. Hello, sir. Good morning, everyone. Uh, Myself, Kumar Gaurav. Currently, I'm working in Ericsson as a solution integrator. As of now, I didn't have any experience over big data. I have good hands-on on Linux and data development code. And,
Okay, Abhishek. I'm Abhishek Srivastava. I've been working with Wipro for 6 years as a consultant. I'm working as a lead software developer, and my technologies are ASP.NET, Oracle, SQL Server, and that's optimized. Okay, Lavish. Yes, Lavish Chauhan here. I am pursuing my BTech from Gautam Buddha University, and I am working from last 2 years on Java with Java. Okay, Kani, would you like to introduce? Yeah, this is this is Sunny Kumar Sinha. Actually, I am working with the Captain 9. I am working as a front full stack developer, working on Spring and the Angular JS. So I don't have the idea about the database too much. Okay, this. So, guys, anyone is left? Want to introduce? Okay, we are good, and Ashish and Rakshit is also facing a problem. So, this is a recorded session. We don't have a problem. Um, so, hello. Okay, guys. So I'm gonna share my screen, and please, Lavish, may I know your connection, everything is fine because you are going to record this session. Okay, sir, no problem, sir. Okay, that's great. So, guys, I'm gonna share my screen. Please let me know if you can see my screen. Before going to start this session, please, if you have any question, any query, so you can ask me right now. Are we Yes, sir. good? Yes, sir. Actually, I am working as a on the Spring application, Spring framework, Spring Boot. So Sunny, this there are big a data, lot of background noises coming from your side. yeah. So is this big data is useful for me also? May I know your profile? What exactly your profile? I am working as a consultant, full stack developer, in which I use Angular JS and Of kind course, of. yeah, of course. You are a full stack developer. Of course, there is no problem if you switch your career on big data because already there are so many person having a front end developer, they are a back end developer. They can easily switch their career in big data. No, no issue. And No I issue. don't have any idea of Hadoop. No, you can today you can take a 2 3 session on big data and Hadoop, then you can familiar with it. There is not too much because there are some advantage of the Hadoop. Like if you are a non-programmer, even you can learn this technology. There is no big deal with it. That's why Hadoop came into the picture. If you don't know the programming, even you can do a analysis, everything inside a Hadoop and big data. Got it? Yes. Yeah, got So it. basically, guys, all are. I hope all are aware about Hindi and English. I'll just motivate you. बेसिकली इससे कोई फेयर नहीं है कि आप को लैंग्वेज आती है या नहीं आती। बिग डेटा ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लोग इजीली स्विच कर सकते हो। यहाँ तक कि जो 2 2 साल तक कॉल सेंटर की जॉब कर रहे थे वो भी आज बिग डेटा में अच्छे पोस्ट में। और मैंने काफी स्टूडेंट देखे हैं जो 5 और 6 साल बाद अच्छे पैकेज में 24 लाख 50 लाख। और रिसेंटली ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं आ रही, फ्रेशर लेवल तक जॉब आ रही। रिसेंटली मेरी कंपनी में ओपनिंग आ रखी, वो आ रखी थी, अर्जेंट बेसिस में आई थी। 10 लोगों की हायरिंग थी उसमें। उसमें फ्रेशर तक को ले रहे थे, तो एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी है। ओके, एनीवेज यू कैन अटेंड 2 3 सेशन, यू विल बी फैमिलियर कि हाँ ये मेरे लिए इजी है। यू वोंट गेट एनी डिफिकल्टी एंड ऑल दैट। Okay, Okay, sir. apart from this, if anyone having a doubt, any related it, any other questions, you can ask me so we can start this session. Are we good? Yes, Yes. Okay, that's great, guys. Okay, this is a quick introductions. Like I having a 6 years experience. I have done my BTech from electrical engineer, guys.
मैं बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किया है, तो सोच सकते हो आई एम वर्किंग इन आईटी फील्ड, हैविंग अ गुड नॉलेज इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन लाइक हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, बैंक, टेलीकॉम, एंड माय क्लाइंट इज लाइक मैकडोनल्ड रहा है, मैरियट होटल रहा है, और ऑलरेडी आई एम वर्किंग फॉर यूएसए प्रोफाइल, for USA health domain data. And about that, in a free time, generally I do internet suffering, giving classes and traveling and music, and more than 90 plus colleges, including IITs. I have delivered so many lectures on big data and all that. If you want to contact me, a number is mentioned over there, and this is my LinkedIn profile. If you want to connect, then that's all. So what I have learned, it's all about the data. So let's quick jump. So today we are going to discuss this topic, big data. So I'm just tell you that what do you understand by when you heard about a big data? It means that like a huge amount of data. If we are talking about 10 years back or 15 years back, we never heard such kind of 20 years back at least. So we never heard this word like big data. We know that data. So my question to everyone, anyone can answer me. What is data according to you guys? What do you mean by data? I mean, data is the collection of storage information. That's great. Anyone? Collection of storage. Yeah, data is the information that our company use. Excuse me. The collective information either in structure, in semi-structure or tabular form. Just wait, guys. I'm gonna add someone. Okay, sorry for the delay, guys. Am I audible? Yes, sir. That's great. So, Ashish, are you there? Hello. Yes, good morning, sir. Hey, so would you like to introduce yourself? A quick introduction. Sir, myself Ashish Lakra. Actually, I am basically MySQL developer having like 1.5 years experience. So I'm just looking for
Hadoop Big Data course. That's why I'm joined the toolkit. Okay, that's great. Ashish, already we have covered this only introduction session we have covered. If you want to see recorded, you can look the recorded session. Okay, so Mhm. uh, I have shared my screen and okay, so data, yes, of course, like it is a collection of information, raw facts, figure. We can say that it is a data, and there are three kinds of data generally in a market, like structured, unstructured, and semi-structured data. Can someone give me a example of structured data? Have you ever seen a structured data? So data in tabular form is a structured data. A regular form in a structured data. Anyone? Sir, sir, in MySQL we are using the structure kind of data. Like in a structured data, we can say like tabular form, and Exactly. in JSON or XML, that is unstructured form that we can say. Okay, so there is a one thing Ashish added over here. Kindly mute yourself after telling your answer. Okay, so there Ashish is added a one point like tabular kind of data. Ashish, kindly mute yourself. Okay, so basically a like tabular kind of form of data, we can say that it is a structured data having a rows, columns. So we can say that having a specific format. So generally RDBMS, SQL Server, whatever be the data inside it, it's generally in the tabular form. So we can say that it is a tabular kind of data. And talking about unstructured data, so anyone want to tell me what is unstructured data according to you? Sir, multimedia The data, movie images, file. images. Yeah. Let's Exactly. say, yeah. Exactly, Gaurav. Like audio, video, PDF file, text file. Am I right? These are your completely unstructured data. Does not having any specific format, images and all that. So these are completely your unstructured data. Then there is a third category is like a semi-structured data. So here Ashish already telling a few points like JSON and XML comes under the category of the semi-structured data. Why we generally call these data semi-structured data? The reason is that these data having a some format. Look, take an example of XML. XML में पहले header होता है, फिर body होता है, then these are the way. लेकिन हम लोग जनरली ये डेटा कभी किसी डेटाबेस में स्टोर नहीं करते हैं. सो इन डेटाबेस का फॉर्मेट तो होता है लेकिन हम इन डेटास का फॉर्मेट तो होता है जनरली बट वी कांट स्टोर दीज डेटा इनसाइड अ डेटाबेस. सो दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेमी स्ट्रक्चर डेटा. जैसे जेएसएन है, जेएसएन का भी एक फॉर्मेट होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, फिर उनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है. तो बहुत सारे जेएसएन का भी एक फॉर्मेट होता है और जेएसएन आपको भी पता है बहुत लाइट वेट डेटा होता है. और आज की डेट में ओवर द नेटवर्क अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना होता है तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जेएसएन की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करें. सो इन दिस बिग डेटा फील्ड इफ यू कैन सी दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब ऑल काइंड डेटा, all of kind of data we have, so that cannot be stored and processed using conventional technology like database. जैसे 1970s की बात की जाए तो वी हैव अ आरडीबीएमएस. हमारे पास उस टाइम आरडीबीएमएस हुआ करता था लाइक तो हम लोग स्ट्रक्चर डेटा पे काम कर लेते थे. लेकिन अब का जो टाइम आ चुका है और उस टाइम जो डेटा जनरेट होता था और इस टाइम जो डेटा जनरेट होता है उनमें जमीन आसमान का फर्क है. अगर हम बात करें 90s से लेकर 2000 तक, whatever be the data generated in these 100 year, आज सेम अमाउंट ऑफ डेटा सिर्फ आधे घंटे में या एक घंटे में जनरेट हो जाता है. कैन यू इमेजिन गाइज कि 100 साल का डेटा आज की डेट में सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में जनरेट हो जाता है. सो रीजन है कि आज की डेट में इतना डेटा जनरेट हो रहा है. अभी आप लोग बिग डेटा पढ़ रहे हो, पता नहीं मार्केट में 10 या 15 साल बाद क्या सुपर डेटा पढ़ोगे या पता नहीं क्या अमेजिंग डेटा पढ़ोगे. नो आइडिया जिस रेट में आज की डेट में डेटा जनरेट हो रहा है. और सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि डेटा जनरेट हो रहा है. वी कैन स्टोर समवेयर एल्स, वी हैव सम स्टोरेज डिवाइसेस, वी कैन क्रिएट अ डेटा सेंटर्स, वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मोर सर्वर. द रियल चैलेंज इज दैट दीज डेटा कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अगर हम बात करें कि इस बिग डेटा में हमारे पास जो 90% डेटा है वो कंप्लीटली हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. So these are the
category like structured, unstructured. Here you can see that the data in tabular form and the unstructured data, audio, PDF file. These are generated basically from Facebook, Twitter, Instagram. There are many sources available in the market like e-commerce business में तो सारा data ही पूरा completely unstructured होता है. Here we have a three categories of the data. Already we discussed these things. So here this is a point I'm just want to tell you that कि unstructured data is useful because of business data is unstructured data. आज की डेट में जो 90% डेटा हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और वही हमारा बिजनेस डेटा है. इन्हीं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशनों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम डेटा वेयर हाउस में डालते हैं. देन हमारी बिजनेस की टीम उस पर डिसीजन लेती है जो हम उनको रेगुलर बेसिस पे रिपोर्टिंग देते हैं. तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपका ऑडियो, पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, रियल टाइम में डेटा हो रहा है, या आप कभी किसी सेशन में, आप मान लो अमेजोन में गए, अमेजोन में कि आपने अपना सेशन क्रिएट किया, उस सेशन में आप कौन कौन से पेज एक्सप्लोर कर रहे हो, किस किस इवेंट पे क्लिक कर रहे हो, ऑल आर ट्रैक्ड. सारे के सारे ट्रैक्ड हो रहे हैं भाई, और इन्हीं डेटा को गैदर किया जा रहा है. तो देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेज अवेलेबल थ्रू विच वी आर गेटिंग दीज डेटा. कोई रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहा है तो हम उसके लिए रियल टाइम टूल्स यूज कर रहे हैं, स्पार्क हो गया, फ्लिंक हो गया. देयर आर प्लेंटी ऑफ डेटा. कहीं ना कहीं हम इनको जाकर किसी डेटा सेंटर्स में या किसी डेटा लेक में या किसी लाइक स्टोरेज सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं. फिर हम लोग अपने ईटीएल प्रोसेस बना रहे हैं, अपने बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, और उनके बेसिस पर हम लोग इनमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. बिकॉज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना बहुत ही हार्ड हो गया था आरडीबीएमएस के लिए. तभी उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया आई एम नॉट रेडी टू वर्क ऑन दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. बेसिकली आरडीबीएमएस बना ही स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए थे, लेकिन आज की डेट में जो मार्केट में कंप्लीटली 85 to 90% डेटा कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और उन्हीं से हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाते हैं, और फिर वही डेटा हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, बिजनेस डिसीजंस के लिए हम लोग आगे को फॉरवर्ड करते हैं. तो बेसिकली हमारा जो मतलब जो फोकस है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में है, और इन्हीं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से आज की डेट में लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस हुए जा रहे हैं कि आगे का टेम्परेचर क्या रहेगा, वेदर फॉरकास्टिंग देखो पूरा इसी में डिपेंडेंट है, नेटफ्लिक्स देखो पूरा इसी में चलता है, रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम मूवीज आप देख रहे हो, रियल टाइम लेक्चर, लाइव सेशन जो भी हो रहे, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. So here we can see that there are plenty of sources available from the market from where we are getting a huge amount of data, like government sector, banking, stock market, like education sector. even हमारे मोबाइल में हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल में कितना डेटा जनरेट कर देते हैं. एक शादी में गए, पता नहीं कितनी वीडियोस पिक्चर बना ली, फिर उसको उठाया अपने लैपटॉप में डाला और पूरा का पूरा लगभग भर दिया. आज की डेट में आपके लैपटॉप में 1% भी स्ट्रक्चर डेटा नहीं है, कंप्लीटली आपने सारा का सारा अनस्ट्रक्चर भरा पड़ा है. मूवीज, ऑडियो फाइल, पीडीएफ फाइल सब इन्हीं से भरा पड़ा है. तो हम सोचो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग कितना डेटा जनरेट कर सकते हैं. बट स्टिल इसके अलावा भी 3 ऐसे मेजर सोर्सेज है मार्केट में जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है. उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है सोशल मीडिया की. आज की डेट में आप यकीन नहीं मानोगे, फेसबुक एंड ट्विटर जनरेटिंग अ 50 टेराबाइट ऑफ अ डेटा इन अ डे. कम से कम 50 टेराबाइट तक का डेटा वो जनरेट करता है. और इमेजिन करो गाइस कि आपका डेटा स्टोर है, सेव है. कभी ऐसा हुआ है कि आपने 5 या 6 साल बाद अपने फ्रेंड से चैट की हो ओवर अ फेसबुक और मैसेंजर, और वो चैट डिलीट हो गई, वो स्टिल वहीं पे है जब तक आप नहीं डिलीट मार रहे हो. तो सोच सकते हो कि फेसबुक कब से डेटा स्टोर करता हुआ आ रहा है. 2009 में फेसबुक मार्केट में आ गया था, आज 2021 चल रहा है. तो फेसबुक के पास सोचो, इमेजिन करो कितना डेटा है. जब स्टार्टिंग में आया था फेसबुक के पास सिर्फ 30 सर्वर्स थे 2009 में, और उसको जस्ट डबल करने पड़ गए थे, इतना डेटा जनरेट हो गया था. और आज तो पूछो मत, उसके 5 डेटा सेंटर्स हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे. सेम एज फॉर गूगल कभी एक टाइम में पहले गूगल से पहले कितने सर्च इंजन हुआ करते थे. 2009 में गूगल आईटी जाइंट बन गया था. सोच सकते हो कि कितना इन लोगों के पास डेटा आ रहा है और कितनी एनालिसिस चल रही. तो आने वाले टाइम में अभी तो चलो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास इतना डेटा है तो वो काम कर रहे हैं. आने वाले टाइम में देखना एक छोटी से छोटी फॉर्म को भी एक बिग डेटा डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल में इतनी डेटा जनरेट कर लेगा उसको अपने बिजनेस डिसीजन लेने की. हाँ भैया, मेरा प्रोडक्ट किस एरिया में सबसे ज्यादा बिक रहा है, मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करनी होगी, कस्टमर के फीडबैक्स क्या है. पहले लोग कितना कस्टमर के फीडबैक्स को कोई पूछता ही नहीं था. आज की डेट में देखो 100 का कॉल आने लग जाती है कि भैया सर आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, सर ये भी फीचर है, सर वो भी फीचर है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भैया हम लोगों का कितना इंपॉर्टेंस, कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है इस चीज को लेकर.
सो सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल कि जहाँ लोग कितनी मार्केटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, चाहे वो ट्विटर में करना हो चाहे फेसबुक में करना है। इंडिविजुअल लेवल में आप देखोगे आई सपोर्ट आदित्यनाथ, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, फिर लोग अपने वहाँ पे चैट कमेंट सब डालते रहते हैं, लेकिन वो सारा का सारा डेटा स्टोर होता है यार। उसी के बेसिस पे तो आप देख सकते हो कितने कितनी कंपनीज खुली हुई हैं जो उन डेटास पे एनालिसिस करते हैं। बीजेपी वालों को तो सबको पता है, आईटी सेल है उनका, वो आईटी सेल कितना रेगुलरली एक्टिव रहता है इन चीज़ों को लेके कि किसने कैसे नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। इवन यार 2014 का जो इलेक्शन हुआ था ना, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग लाइक इन्फ्लुएंसिंग द यूथ। आपने देखा होगा कि 2014 में क्या क्रेज हो रखा था, मोदी मोदी, हर जगह मोदी लगा हुआ था। और वो देखा था पूरा सोशल मीडिया में पूरा का पूरा फ्लो ही हो गया था, सबके सबों का माइंड वहीं चले गया था। आज की डेट में आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या परसेप्शन है उसको लेके, बट 2004 में सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक for politics, in politics play a very vital role in the politics। सारा का सारा यूथ ही इसमें जाके फ्लो हो गया था। तो आने वाले टाइम में आप सोच सकते हो कि कितना इसका यूज हो रहा है, उन डेटा को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे उस पे डिसीजन लिए जाए। तो फेसबुक है रिस्पॉन्सिबल जो जनरेटिंग। फेसबुक के अलावा मैं सिर्फ ट्विटर और फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें लिंक्डइन भी आ जाता है आपका। जितनी भी जहां पे भी आप साइन अप कर रहे हो ना, इट मीन्स दैट यू आर क्रिएटिंग योर डेटा। आपने लिंक्डइन में साइन अप किया, चाहे आपने टिकटॉक में किया, कहीं पे भी किया, भाई टिकटॉक का ही सुन लो। टिकटॉक का रिसेंटली खबर आई थी कि टिकटॉक जब मार्केट में आया था, एक साल में टिकटॉक ने फेसबुक और ट्विटर के कम से कम 5 से 6 साल तक के डेटा से भी ज्यादा डेटा जनरेट कर लिया था। इतने लोग टिकटॉक में घुस गए थे। तो सोच सकते हो टिकटॉक जैसी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट होती अगर इंडिया में, तो पता चल रहे होते हैं कि उनके लिए भी कंपनीज लॉन्च हो रही है जो उनके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए काबिल हो जाती है। आई डोंट नो। तो सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स आता है फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड लाइक सेंसर्स इन अ मार्केट, लाइक आईओटीज इन अ मार्केट। आप देख रहोगे कितनी स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट डिवाइसेज हैं जो कि भैया आपकी कैलोरीज बता रही है, आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली, आपको हार्ट डिजीज। तो इतनी स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं कि जिसमें आप लोगों की रिपोर्ट डॉक्टर को जा रही है। इतनी स्मार्ट कार्स आ रही हैं कि जिसमें भाई जीपीएस लगाए तो आप यू कैन इजिली ट्रैक, मतलब आपकी लोकेशन सारी ट्रैक हो सकती है। इवन आपके मोबाइल, अगर आपका मोबाइल में एक्टिव है मतलब लोकेशन एक्टिव है, और जीपीएस के थ्रू कैसे हम लोग ट्रैक, गूगल मैप काम करता है पूरा का पूरा। तो आप सोच सकते हो जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिनमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो, तो सोचो ये कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में ड्रोन्स में काम किया था, तो हम लोग ड्रोन्स के डेटा को मतलब सेंसर्स के थ्रू उन डेटा को कलेक्ट करते थे। फिर उसमें हम लोग एनालिसिस करते थे कि ये कितने एल्टीट्यूड में उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो इवन अगर हम बात करें एक एरोप्लेन की, फेसबुक और ट्विटर जो 50 टेराबाइट का डेटा जनरेट करते हैं एक दिन में, अगर एक एक एयरलाइंस, एक एरोप्लेन अगर मुंबई पुणे से मुंबई जाता है ना, उतना सेम अमाउंट का डेटा जनरेट कर लेता है। उनके अंदर क्या होते हैं, वो ब्लैक बॉक्स होते हैं जिनमें प्लेंटी ऑफ सेंसर्स रहते हैं। पहले कितने केसेस हम सुनते थे कि भाई ये एरोप्लेन क्रैश हो गया, वो एरोप्लेन क्रैश हो गया। नाउ डेज वी रियरली हर्ड कि कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया। आप सोच सकते हो सेंसर हर चीज का डेटा स्टोर करते हैं यार, एक एक सेकंड में 1-1 GB का डेटा। किस एल्टीट्यूड में उड़ रहा है, आगे का टेम्परेचर क्या है, पीछे का टेम्परेचर क्या है, कोई भी हमें रीजन पता चल जाता है कि किस वजह से ये एरोप्लेन क्रैश हुआ। लेकिन बहुत कम क्रैश हो रहे हैं आज के डेट में। तो आईओटी सेंसर्स, अब मोदी जी ने जैसे 2014 में डिक्लेयर किया था कि 100 स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट होगा। आई डोंट नो कि अभी वो चल रही है नहीं चल रही है, आई डोंट नो। लेकिन उन स्मार्ट सिटीज में इन्हीं गैजेट्स का यूज करने जा रहे थे वो, कि मतलब इन्हीं सबसे हम लोग पूरा का पूरा करेंगे। अभी आपने वो देखा होगा नरेंद्र मोदी भाई स्टेडियम जो बना है, भाई उसकी क्या बेनिफिट्स हैं उस स्टेडियम के, बता कि इवन अगर बारिश भी हो जाती है 5 या 10 मिनट में वो पूरा ग्राउंड सोख लेगा। सोच सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बेटर यू कैन स्विच योर करियर, क्योंकि अब मार्केट इतना डायनेमिक हो चुका है कि अगर आपने अपने आप को डायनेमिक नहीं किया ना, तो आपको रिप्लेस कर देगा ये एआई वे। अभी आप लोग लेके चल रहे हो .NET, ये अपनी जो भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, आने वाले टाइम में ये सारा काम एआई करने लग जाएगा भाई, तुम लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेटर है कि आप अपने आप को जितना जल्दी स्विच कर सकते हो टेक्नोलॉजी में उतना कर लो, क्योंकि एआई ऐसे है कि आप खुद ही कोडिंग कर रहा है एआई भाई। एआई के थ्रू खुद ही अपने आप ही कोडिंग्स हो रही हैं। आप अपने इनपुट्स जो एआई कोडिंग कोड बन बनाया कोड दे देगा आपको। आप एक नॉर्मल सा भाई फेबोनिकी सीरीज का कोड बना रहे हो, पैलिंड्रोम का कोड बना रहे हो, एआई तुरंत बना के दे दे रहा है।
तो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि भैया कि इतनी स्मार्ट डिवाइसेस, इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज होंगी जो खुद काम कर जाएगा। मैं आपको कभी 10 टेक्नोलॉजी, एक पीपीटी दूंगा जिसमें मेरी मतलब 10 ऐसी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आने वाले टाइम में डेवलपर्स को रिमूव कर देंगे। तो बेटर है कि अपने आप को जितना जल्दी हो सके स्विच कर लो टेक्नोलॉजीज में, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। These are the four V's for a big data. Of course, four V's, three V's generally discuss करते हैं, volume, velocity and variety. तो volume big data का एक part है, like आप you know very well there are plenty of sources like social media, e-commerce, banking, stock market, from where we are getting a terabyte of data. Mobile user देखो यार, 6 billion people using a mobile. किसी किसी के पास तो 2-3 mobiles हैं, और सोचो कि कितना भाई इन लोगों से डेटा जनरेट हो रहा होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन है पूरे वर्ल्ड में, तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और देन द सेकंड थिंग, वेलोसिटी, किस रेट में डेटा जनरेट हो रहा है। देख रहे हो यूट्यूब में लोग अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सेम एज टिकटॉक, देयर आर प्लेंटी ऑफ साइट्स फ्रॉम वेयर वी जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और किस रेट में डेटा जनरेट हो रहा है, दैट इज रेफर फॉर वेलोसिटी, कि कितना रियल टाइम का डेटा जनरेट कर रहा है। इवन वी आर जनरेटिंग दिस डेटा, लविश ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, वी आर जनरेटिंग अ डेटा, कम से कम 2-3 जीबी का डेटा जनरेट हो जाएगा इस ऑडियो से। एंड गाइज स्काइप में आई जस्ट वांट टू गिव अ नोट ओवर देयर कि स्काइप में वीडियो 30 डेज के लिए होते हैं। तो इफ यू वांट टू सेव दिस डेटा यू कैन सेव, नो प्रॉब्लम, आप इसको सेव कर लेना, वरना अदरवाइज ये वीडियो सेशन भी खत्म हो जाएगा। Then the third categories comes like variety. So volume, velocity, and then the third variety. Variety refers generally all kind of data यार, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, चाहे सेमी स्ट्रक्चर्ड हो। आप अगर सोचो आप 50 टेराबाइट का अनस्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हो, उनमें से आपने कम से कम जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है 20 टेराबाइट की निकाल ली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो आप एक तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड ही बना रहे हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना डेटा हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड से भी स्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं। तो हमारे पास सारा वैरायटी आ रहा है, चाहे वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, और चाहे आपका स्ट्रक्चर्ड हो। और देन द फोर्थ कैटेगरी इज वेरिसिटी, मतलब ऐसा ऐसा डेटा आ रहा है कि कभी हम लोग ने सोचा था कि हम लॉग के डेटा में एनालिसिस करेंगे। नाउ डेज वी आर डूइंग अ लॉग एनालिसिस। कभी किसी ने सोचा था स्ट्रीमिंग डेटा पे भी एनालिसिस हो सकती है, रियल टाइम डेटा पे एनालिसिस हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ द डेटा, मतलब कुछ भी कैसा भी डेटा आ सकता है भाई, और उसको हमें पता भी नहीं होगा, तो फिर भी हम लोगों को उसमें से यूजफुल, ये जो IoT डिवाइसेस से ऐसा ऐसा डेटा आता है, पहले किसी को पता ही नहीं था कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। Now we can see that these are the four V's generally which represent the characteristics of big data. If anyone asks you what is 4 V's or 3 V's of big data, so you can say that these are the characteristics: volume, velocity, and variety. So already we discussed volume, already we discussed velocity, like sensor, smart metering are dividing need to deal with torrents of data in the near real-time data. Then variety, variability, veracity, these are the two different things. So these are the four characteristics of the big data. How big data is useful? Exactly. अब इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल क्यों है, मतलब क्या बेनिफिट है। अगर फालतू का, कि अगर मैं, चलो आपके पास एक आपने अपनी एक कंपनी खोली, लेट्स टेक एग्जांपल, अभी आपका इतना पॉपुलर मार्केट नहीं है, मतलब आपने, मान लो आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की, अभी आपने वो एप्लीकेशन सिर्फ अपने 4 या 5 फ्रेंड्स को शेयर की, उनको बड़ा मजा आ रहा है भाई कि यार तूने बहुत धांसू एप्लीकेशन बना दी। और तेरे आपके फ्रेंड्स ने सोचो 10-15 लोगों को और बता दिया कि भाई गौरव, भाई अभिषेक, तुम लोगों ने यार एप्लीकेशन बनाई है, धांसू है, मेरे और फ्रेंड मांग रहे हैं। और कम से कम 10-15 से 20 पूरी सिटी में आपकी एप्लीकेशन पॉपुलर हो गई। अब आपकी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए आपको, अब तक तो लैपटॉप में थी तो चलो 3-4 लोग एक्सेस कर रहे थे, फिर आपने एक बड़ा सर्वर खरीद लिया था 3 lakhs का, 4 lakhs का, और आपने पूरे सिटीज में अब आपकी एप्लीकेशन, जैसे टिकटॉक जैसे रातों रात कैसे फेमस हो गया। तो सेम चीज यार, अगर आपके यूजर्स बढ़ते जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ती जाएगी, आपका डेटा बढ़ता जाएगा, आपको उसको मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, टीम चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जितना डेटा होगा उतनी आपको लिए चैलेंजेस है। अगर आप एक बात करो, एक इंस्टीट्यूट की बात करो, अगर वो इंस्टीट्यूट में बच्चे आने लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आने लग गए, तो उन इंस्टीट्यूट को अपना रिसोर्स हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे जो भी हो गया, सब बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी बिग डेटा आता है टू मार्केट रेलिवेंट प्रोडक्ट
आज के डेट में देखा होगा कि जैसे कि आप अमेजोन में गए, अमेजोन में आप अपने लिए जीन्स देख रहे हो, शर्ट देख रहे हो, टी शर्ट देख रहे हो, तो वो कंटिन्यूसली आपकी सेशंस को कैप्चर कर रहे हैं कि कितने सेशंस आप लॉग इन रहे, किस टाइम में लॉग इन रहे, किस पेज में आप सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हो, किस चीज पर आप क्लिक कर रहे हो, वो सारी एनालिसिस करते हैं यार। और फिर कभी आपने देखा हो कि आप ना किसी और दूसरी वेबसाइट में बैठे हो और वो प्रोडक्ट आपके सामने नाच रहे होते हैं। उनको कैसे पता कि भैया कुछ देर पहले आप लैपटॉप देख रहे थे या कुछ देर पहले आप प्यूमा या रिबॉक के शूज देख रहे थे और वो शूज नाचते रहते हैं। वो सारी एनालिसिस होती है यार। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे बिग डेटा, वहां पे डेटा साइंस आ जाती है, लेकिन बिग डेटा उसका बेस है कि हाँ भैया वो लोग स्टडी कर रहे हैं, आज की डेट में देख रहे हैं कि पीपल का कैसा टेस्ट है, कहीं फिर हमारा मन करता है हाँ चलो ले ही लेते हैं प्यूमा के और ऑर्डर कर डालते हो। इतनी मार्केटिंग चलती है भाई, इतनी मार्केटिंग चल रही है आज के डेट में डेटा को लेके कि भाई दुनिया भर के मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सब यही है। जब तक आपको बेस पता नहीं है बिग डेटा का, डेटा का क्योंकि कभी भी कोई भी एप्लीकेशन, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो, अगर आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपने समझ लो 90% वो 90% वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, 10% तो आपकी कोडिंग वोडिंग है। तो डेटा से वो लोग इतना खेल रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जब ज्यादा डेटा होता है तो नए नए आइडियाज आते हैं कि हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं, वो चीज भी कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? जितना ज्यादा डेटा है उतना हम ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, उतना ज्यादा हम लोग अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिनके थ्रू हम लोग ये कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम रिडक्शन, टाइम एकदम कम समय में हम लोगों को एनालिसिस मिल जा रही है। डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि हमारे पास इतना डेटा है तो हम क्विक डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कम डेटा होगा तो आप रिपोर्टिंग में या बिजनेस डिसीजन लेने में घबराओगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो आपको पता है कि हाँ यार मतलब मोस्ट ऑफ द क्राउड इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मान रही, तो हमको इस प्रोडक्ट पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाते हैं, मतलब डिसीजन लेना बिजनेस में। साइंटिफिक रिसर्च में कितना यूज हो रहा है आप देख रहे हो। हेल्थ केयर सेक्टर में रिसेंटली मेरे डैड अभी डायग्नोस थे कैंसर में। उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं उनकी टीम के साथ भी बैठा था, क्योंकि वो जो डॉक्टर था काफ़ी फैमिलियर हो गया था मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि पंकज आप आईटी सेक्टर में हो, तो हम लोगों की टीम भी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई के साथ रिसर्च कर रही है, जिसमें क्या होगा आने वाले टाइम में कि डॉक्टर सिर्फ अगर तुमने मुंह खोला और अगर वहाँ पे कोई स्पॉट है तो डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा टेक्नोलॉजी से कि इसको कैंसर है कि नहीं है। मतलब इतनी रिसर्च चल रही है भाई साइंटिफिक सेक्टर में। इसरो इसरो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में भाई आने वाले टाइम में बस दूर से ही मशीन बस लगाया और देख लिया कि तुम्हें कैंसर किस लेवल का है, किस स्टेज का है, क्या प्रिकॉशन है, क्या है, मतलब अनबिलीवेबल। अभी इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर इतना फ्लरिश नहीं है, आने वाले टाइम में इतना फ्लरिश होगा हेल्थ केयर सेक्टर कि इतनी अपॉर्चुनिटी होगी। यू कैन ग्रैब द मार्केट, यू कैन कैप्चर द मार्केट। So there are so many benefits of the big data. And who use big data? सब जगह, बिजनेस, गवर्नमेंट, बैंक, हेल्थ केयर, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सोशल मीडिया, एवरीवेयर यार। तुम जो भी बोलो हर जगह आज के डेट में बिग डेटा का। बाइजू को देख लो, क्या पॉपुलर हो गया है भाई। आने वाले टाइम में लग रहा है स्कूल बंद होंगे, बाइजू वाले ही सिखाने लग जाएंगे कि आइए हम आपको सिखाते हैं बाइजू। दुनिया भर के भाई पता नहीं एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी, पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था। उनकी तरफ से मेरे को कॉल आया कि सर वी हैव अ ओपनिंग ऑफ बिग डेटा। मैंने बोला एक्स्ट्रा मार्क्स? जब मैंने खोल के देखा तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स पूरी ऑनलाइन क्लास है भाई। मतलब तुम बच्चे आजकल एक्स्ट्रा मार्क्स में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, मतलब सब कुछ सारे सब्जेक्ट। इन जैसी कंपनीज को भी भाई बिग डेटा में सोचो डील करना पड़ रहा है। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार मतलब हर जगह फैल गया है ये, मतलब एवरीवेयर वी नीड दिस बिग डेटा। मतलब कि आपको ये आना ही जरूरी आने वाले टाइम में। मतलब कहीं ये एसेंशियल ना बन जाए कि भैया आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है, अगर नहीं है तो गो एंड लर्न इट। तो बेटर है कि दिस इज द राइट टाइम कि यू कैन लर्न एंड switch your career inside a big data. So till here, I just gave a 1 minute pause. If anyone having any doubt, any question, you can ask me right now. Not Anyone? yet. Not yet. Okay. Are we good? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Next, so who use big data? These are the companies. So now you can see the contributor to the big data. मतलब आप 1 मिनट की एक्टिविटी देखो, जस्ट सी द 60 सेकेंड कि 60 सेकेंड में क्या हो रहा है। ये तो मैंने बहुत कम लिखा है।
98,000 ट्वीट्स हो रहे होंगे डेफिनेटली। ट्विटर में सब एक्टिव है भैया, दुनिया भर का। कुछ भी कंट्रोवर्शियल हो, चाहे वो कंगना रनावत कर दे या राखी सावंत कर दे, भाई इतनी ट्रेंडिंग चलती है, सोच नहीं सकते हो ना। ये तो बहुत कम है, 6 मिलियन। ये बहुत पुराना एक इमेज है, मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया है। 6,95,000 मिलियन स्टेटस अपडेट हो रहे होंगे 60 सेकंड में। सब लगे पड़े रहते हैं फेसबुक में। आजकल लॉकडाउन में तो भाई फेसबुक में गदर ही मचा रखी है भैया। इसका स्टेटस लाइक नहीं करना, वो नहीं करना भाई, अपनी अलग ही वो है भाई, रियलिटी है। 11 मिलियन इंस्टेंस मैसेजेस भाई, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है। सोच सकते हो गूगल सर्चेस कितने हो रहे होंगे। अगर कोई आईटी का बंदा तो पता नहीं दिन भर स्टैक ओवरफ्लो में पड़ा रहता होगा कि भैया यहीं जाके जो है ये भगवान है हमारे लिए, स्टैक ओवरफ्लो। फिर उसके बाद 168 मिलियन ईमेल सेंट, कितना डेटा क्रिएट हो रहा है। 270 न्यू मोबाइल वेब यूजर एवरी सेकेंड जनरेट हो रहे होंगे। तो इमेजिन करो यार कितना डेटा है मार्केट में। हम लोग सिर्फ हम सोच रहे होंगे, सब इमेजिन करो, आंख बंद करके सोचो कि भाई कितना डेटा कहाँ कहाँ से नहीं डेटा जनरेट हो रहा होगा। सो आने वाले टाइम में भाई इसकी बहुत स्कोप है। बेटर है कि जितना जल्दी इसको लर्न कर लो, कहीं ये आप लोगों के लिए एसेंशियल ना हो जाए कि भैया सीवी में बिग डेटा आना जरूरी है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लाइक डेटा सेंटर बात करें, ये जनरली गूगल के डेटा सेंटर है। तो ऑल ओवर इनके 19,000 सर्वर है कम से कम एक डेटा सेंटर। इससे ज़्यादा ही है यार, ये तो बहुत कम लिखे मैंने। 12 सिग्निफिकेंट डेटा सेंटर है यूनाइटेड स्टेट में, और अनदर 3 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। यूरोप में बात की जाए तो उनके कम से कम 5 लोकेशन में डेटा सेंटर है, और 2 अदर वेन्यूज में। आने वाले टाइम में ये हर एक कंट्रीज में। और किसी ने सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के डेटा सेंटर तो पानी में फ्लोट कर रहे हैं यार, इतने गर्म हीटअप हो जाते हैं वो। मतलब समुद्र में उनको उतना Yes, sir. टेम्परेचर मिल नहीं पाता है। अगर रिसेंटली आपने सुना हो इसके बारे में। फेसबुक की बात करें, 2009 में फेसबुक के पास भाई 30,000 सर्वर थे। जस्ट डबल करने पड़ गए उनको एक साल में। और आज तो पता नहीं कितने डेटा सेंटर है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। दीज आर द बिग डेटा चैलेंजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक स्टोरेज, डेफिनेटली स्टोरेज इज द बिग चैलेंज। जब इतना वॉल्यूम ऑफ डेटा आ रहा है भैया, स्टोरेज तो हमारा रियल कंसर्न होगा ही। कि मतलब कि भैया उन सारे डेटा उसको कैसे स्टोर किया जाए, कहाँ कहाँ रखा जाए, मतलब कैसे स्टोर किया जाए। फिर स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम बट नॉट अ रियल प्रॉब्लम। अगर मैं कल के दिन आपके यहाँ ट्रक लेके आ जाऊँ एक बुकों का, तो आपको दिक्कत तो होगी कि भैया इतनी बुकें मैं कहाँ रखूँ। लेकिन आप अपने फ्रेंड से बोल दो कि भाई यार कुछ किताबें तू रख ले, तो कुछ बुक्स तू रख ले, मतलब आप मैनेज कर लोगे स्टोरेज पार्ट को। लेकिन जो रियल चैलेंज है कंप्यूटेशन का। आप सोच सकते हो अमेजोन में आप डालते हो प्यूमा के शूज, सोचो वहां कितने सारे शूज होंगे यार। सारा का सारा डेटा एक सेकंड से भी कम टाइम में आपके सामने आ जाता है। तो सोच सकते हो कंप्यूटेशन इज द रियल चैलेंज यार। एक एग्जांपल दूं, अगर डेली लाइफ को देख के आपने अपने घर में मतलब 10 दिन का सब्जी लेके आ गए, मतलब 50 दिन की सब्जी लेके आए, आपके दिमाग खराब हो जाएगा भैया कि यूटिलाइज कैसे करूं इस सब्जी को, मतलब कहीं सड़ ना जाए, कहीं बेकार ना हो जाए। आपके लिए रियल चैलेंज यही है। कंप्यूटेशन इज द रियल चैलेंज यार। वी स्टोर द डेटा, हाउ वी गोना प्रोसेस दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड हाउ वी क्विकली गेट अ रिजल्ट। ऐसा भी नहीं है कि स्टोर कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली। जैसे आरडीएमएस है, हम लोग आज की डेट में सारी कंपनियां आरडी मतलब बिग डेटा में क्यों मूव हो रही हैं। आरडीबीएमएस में, सिक्वल सर्वर में, यार आप यकीन नहीं मानोगे, वहां 1 टेराबाइट का डेटा था, उनके 9 मॉड्यूल बने हुए थे, लगभग 9 प्रोसीजर बने हुए थे। यार वो 5 दिन ले लेते थे भाई उस डेटा को वो प्रोसेस करने में। 5वें दिन रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या डिसीजन ले पाओगे। मतलब सारा 5वें दिन चलाया था और आज रिजल्ट आ रहा है। तो कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, इसलिए सारी कंपनी आज के डेट में बिग डेटा हो रही है। 2 या 3 घंटे में रिजल्ट आ रहा है भाई। 1 टेराबाइट पेटा, 1 टेराबाइट छोड़ो, पेटाबाइट के डेटा में मतलब कम से कम 7 8 8 8 घंटे में रिजल्ट आ जा रहे हैं, तुरंत क्विक। उसमें तुरंत बिजनेस डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कंप्यूटेशन इज द रियल चैलेंज यार, कि हम प्रोसेस कैसे करें इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम्स लाइक डेटा लॉसेस, बहुत पहले तो आप सुनते थे कि ये सर्वर डाउन, ये डेटा गया, ये मशीन डाउन। तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंज वी हैव कि लाइक हमारा ये डेटा क्रैश हो गया, वो डेटा हो गया, तो डेटा लॉस होते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे बिग डेटा में काफ़ी हैंडल किया जा रहा है चीज़ों को। मतलब 3 3 रेप्लिकेशन फैक्टर है, उनके बैकअप हैं कितने सारे कि इवन इफ यू एनी मशीन इज डाउन, एनी server is crashed, even a data center is crashed, don't worry, your data is safe, आपका डेटा बहुत सेफ है। देन द कॉस्ट इज द रियल चैलेंज। ऑफ कोर्स यार, जब डेटा है
इतना सारा कहाँ स्टोर करें, और स्टोर कर भी लें उस पर कंप्यूटेशन कितना है। सोचो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में कितनी सारी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, तभी तो आपके क्लाउड व्लाउड के ये अकाउंट हैक हो जाते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी करते रहते हैं भाई। कभी फुर्सत भी तो मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी में कितनी मतलब कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है। सोचो तभी तो हैकर्स लगे रहते हैं क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने में, कि उनको इतनी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। तो सोचो कॉस्ट कॉस्ट इज द रियल मैनर, कि कॉस्ट भी एक बड़ा रियल चैलेंज है कि हम इतना सारा बियर कैसे करें। तो दीज आर द सम बिग डेटा चैलेंजेस, कि बिग डेटा को ये परेशानी आ रही थी क्या करें। सो देन आरडीएमएस तो था, व्हाई नॉट यूज आरडीएमएस। जब हमारे पास आरडीएमएस था तो हम आरडीएमएस क्यों नहीं यूज करें। तो आरडीएमएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, स्केलेबिलिटी इज एन इशू स्पेशली इन आरडीएमएस व्हेन डेटा इज इन टेराबाइट। भाई स्केलेबिलिटी सबसे बड़ा इशू था, मतलब कि आरडीएमएस को लाइक एक बार आपने क्लस्टर या सर्वर बना दिया जिसका सीक्वल सर्वर का ओरेकल को, आप उसको एक्सटेंड ही नहीं कर सकते हो। कल के दिन अगर मान लो डेटा 1 टेराबाइट का एक्स्ट्रा आ जाए, या तो आपको ओल्डर डेटा डिलीट करना होगा या तो वो डालना पड़ेगा। अब तो चलो बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हो चुकी है और ज़्यादा काम हो चुका है। पहले तो ऐसा होता था कि इन लोगों को स्केलेबिलिटी एक इशू था इनके लिए। इन टू टाइप्स की स्केलेबिलिटी होती है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो यहाँ पे वर्टिकल स्केलेबिलिटी थी सर आरडीबीएस में इसको ज्यादा। बताइए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होती है? हाँ यस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या होती है? हाँ वो मैं बता रहा हूँ। जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केलेबिलिटी का मतलब है, जैसे आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है, ठीक है। आप चाहते हो कि यार मेरा मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आप रैम बढ़ा सकते हो अपनी मशीन की। गए दुकान में जाके 4 GB रैम और लगा दी, 8 GB रैम हो गया। दिस इज वर्टिकल स्केलिंग। अब आपने क्या सोचा, और हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या होता है कि आपका लैपटॉप है 4 GB रैम का है, और आपने बोला कि भैया ये तो स्लो काम कर रहा है, तो आपने 3 लैपटॉप और लगा दिए दोस्तों को लेके उस टाइम के लिए, और उनको कनेक्ट कर दिया इथरनेट से और पावर बढ़ा ली अपनी। दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। तो जो हडूप था उसमें हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी थी कि कल के दिन अगर साला 50 टेराबाइट का या 100 टेराबाइट का डेटा आएगा तो यार मैं अपनी 50 मशीनें और लगा दूंगा। लेकिन इनके साथ दिक्कत थी यार, तुम एक मशीन की कैपेबिलिटी एक हद तक बढ़ा सकते हो ना। चलो मैं ज्यादा ज्यादा अपना 4 GB का लैपटॉप 12 GB कर लूंगा या 16 GB कर लूंगा, 100 GB तो नहीं कर पाऊंगा ना भाई। उसके अकॉर्डिंग उसका मदरबोर्ड भी तो होना चाहिए या सीपीयू पावर भी होनी चाहिए। तो आरडीएमएस के साथ था कि ये वर्टिकल स्केलिंग कर सकते थे और वो भी एक लिमिट तक कर सकते थे। लेकिन हडूप के साथ था कि हॉरिजेंटल स्केलिंग। ओ भैया 50 टेराबाइट ऑफ डेटा आ गया, ओके कोई नहीं, क्लस्टर में भयंकर एक और रैक ऐड कर दो और सर्वर लगा दो पैरेलल। तो ये बेसिकली था कि आप कंप्यूटिंग अगर डेटा बढ़ेगा तो आप और मशीनें ऐड कर लो। दिस इज व्हाट वी कॉल जनरली हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। आप अपना ऐड करते रहो। तो यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हो कि वी कैन नॉट ऐड मोर कंप्यूटिंग पावर टू द इंक्रीज द परफॉर्मेंस। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इनसाइड आरडीएमएस। और अगर आप देखोगे डेटाबेस को, आर यू स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन ऑन हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केलिंग? नो सर, नो सर। आर यू गुड? यस सर। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे देखोगे इनका जो डेटाबेस था वो क्या था, 80% पूरा स्ट्रक्चर डेटा के लिए डिजाइन किया था। हल्का फुल्का भी अगर अनस्ट्रक्चर डेटा आता था इनकी हालत खराब हो जाती थी। अब तो कंप्लीटली 90% बिजनेस डेटा आज की डेट में अनस्ट्रक्चर्ड है। आरडीएमएस ने हाथ खड़े कर दिए, भाई आई एम नॉट रेडी, मैं नहीं कर सकता हूँ काम भाई। और एज द डेटा गेट बिगर इंडेक्सेस नीड टू बी चेंज। अगर डेटा बढ़ता जाता था, इनके जो इंडेक्सेस बनाए हुए थे उनको ऑप्टिमाइज करने पड़ते थे, और भी ज्यादा उनको ऑप्टिमाइज। सो क्वेरी नीड टू बी ऑप्टिमाइज ईटीसी टू अचीव माइनर इंप्रूवमेंट। मतलब यार डेटा बढ़ता था, इनकी हालत ही खराब हो जाती थी कि भैया इंडेक्सेस करो, ऑप्टिमाइज करो, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करो, सीक्वल प्रोसीजरों को मॉडिफाई करो। बहुत सारे चैलेंजेस थे भाई डेटा को लेके। रीजन क्या था कि इनके पास स्केलेबिलिटी नहीं थी। So these are the challenges of RDBMS. Then Hadoop came into the picture. Hadoop told to big data, don't worry, Chicha, I'm here. I'm ready to help you. I'm ready to solve your all challenges. So what our solution must have, हमें क्या चाहिए था कि हमें कोई हैंडल कर सके ये हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, कोई ये जो जितने डेटा लॉसेस हो रहे हैं इनको अवॉइड कर सके, हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी हो कि कल के दिन डेटा बढ़े तो वी कैन ऐड अ मशीन्स, कॉस्ट इफेक्टिव हो। आप देखोगे आरडीएमएस में यार इतनी भारी भरकम मशीनें यूज होती थी ना, मतलब उसका जो वहां पे भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर था, मास्टर थी बहुत सारी स्लेव मशीन, तो उनके लिए हालत खराब थी भाई। मतलब कि मशीनों की पावर कंप्यूटिंग आप देखो, मास्टर मशीन की अलग ही लेवल की पावर कंप्यूटिंग दे रखी है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, कि कॉमोडिटी हार्डवेयर में काम कर सके, हमारा इवन हमारा लैपटॉप भी प्रोसेस कर सके डेटा
को हम अगर 10-15 मशीनें सेम कॉन्फ़िगरेशन की 4 जीबी बार, आप देखोगे ओरेकल का आप सेटअप करते हो मिनिमम 12 जीबी या 16 जीबी रैम लैपटॉप की चाहिए होती है, तब आप ओरेकल को सीख सकते हो। हडूप में अगर आपके पास 4 जीबी रैम भी है ना, आप अपने मशीन में ubuntu डालो, आप आराम से हडूप को स्टॉप कर सकते हो, मतलब इंस्टॉल कर सकते हो और काम कर सकते हो। इजी टू वर्क ऑन, मतलब इवन फॉर नॉन प्रोग्रामर आर अ न्यू प्रोग्राम कैन लर्न दिस टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये जो सनी के डाउट थे ये यही है कि भैया ये इसको हर कोई सीख सकता है भाई, इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा बैकग्राउंड में तुम्हें ये चीज आनी चाहिए। इस चीज को ही प्रेफरेंस दी गई कि इसमें एक नॉन प्रोग्रामर चाहे वो नया प्रोग्रामर है इवन कैन लर्न इजिली दिस बिग डेटा टेक्नोलॉजी और स्टार्ट वर्किंग एनालिसिस एंड ऑल दैट। क्योंकि इनके पास क्या है, जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्राम के थ्रू ही एनालिसिस करें, आपको अगर पाइथन भी आती है तो पाइथन के थ्रू कर लो, आपको अगर पेग आती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है स्क्रिप्टिंग से कर लो, सीक्वल आती है तो सीक्वल से कर लो भाई। स्पार्क सीक्वल पढ़ी, पूरी सीक्वल क्वेरी मारो वहां दबा दबा के भाई। स्पार्क में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू ही आप डेटा हैंडलिंग कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, वहां स्पार्क सीक्वल है यार, सीक्वल भी अगर सीक्वल क्वेरीज भी आती है मारो वहां सीक्वल क्वेरीज, यू कैन इजिली लर्न दीज थिंग्स। ईटीएल परफॉर्म करना है करो आप, सीक्वल है इसमें। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, तभी हडूप आया। हडूप ने सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। हडूप मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट। एज डेटा ग्रो मोर नोड्स कैन बी एडेड सीमलेसली, वर्क फास्टर देन आरडीएमएस, डेटा रेप्लिकेशन, प्रिवेंट डेटा लॉसेज। इसके अंदर वो था बाय डिफॉल्ट हडूप में 3 रेप्लिकेशन फैक्टर है। अगर आपका डेटा 1 टेराबाइट का तो 3 टेराबाइट का डेटा ओवर द क्लस्टर सेव हो रहा है। अगर आपको 3 नहीं करने, 2 करने तो 2 कर लो। मतलब हडूप ने सारे फीचर दिए। हडूप इज कॉस्ट इफेक्टिव, कॉमोडिटी हार्डवेयर कैन बी यूज, नो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर इज नीडेड। Hadoop is a open source and freely available, so no license fees। और सबसे बड़ी बात तो बताना ही भूल गया कि इसकी कोई लाइसेंस फीस ही नहीं है, फ्री है। अपाचे की वेबसाइट में जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो आप। और जबकि ओरेकल इन सब के लिए लाइसेंस लेने पड़ जाते थे, लाइसेंस फीस अलग है, ये सब है। Hadoop ओपन सोर्स है यार कंप्लीटली, ये तो मैं बताना ही भूल गया था। दैट इज द मेन थिंग इनसाइड इट। सो Hadoop फिल ऑल द रिक्वायरमेंट। तो अगर ये कंपैरिजन देखा जाए तो आरडीएमएस क्या है, वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा पे फोकस करता था, हडूप सारे डेटा पे फोकस करता था, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, चाहे सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो। आरडीएमएस में सीक्वल आना मस्ट है भाई। अगर कल के दिन ओरेकल में हो गया और आप बोल रहे मैं सीक्वल जानता नहीं हूँ, ओरेकल में आपके मतलब सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो बेवकूफ है। वहां पे मस्ट है कि भाई सीक्वल आना आपको जरूरी है। हडूप में नेसेसरी नहीं है भैया, आपको सीक्वल आती है आप सीक्वल से करो, आपको लैंग्वेज आती है आप लैंग्वेज से करो, आपको जावा आती है आप जावा से करो, आप पाइथन आती है पाइथन से करो, आपको स्काला आती है स्काला से करो, स्क्रिप्टिंग आती है स्क्रिप्टिंग से करो। यू कैन डू एनालिसिस विद एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, आप किसी से भी आप कर सकते हो एनालिसिस। फिर अगर बात करें हडूप में, आरडीबीएस में बात करें, लाइसेंस है, हडूप आपका ओपन सोर्स है, ये वर्टिकल स्केलिंग है, इसमें आपकी हॉरिजेंटल स्केलिंग है। और प्रोसेसिंग की बात करें, या मेन चीज तो और है, ये सेकंड पॉइंट गाइस, ये है कि आरडीएमएस आपका ना सेंट्रलाइज सिस्टम है और हडूप आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रलाइज बोले इसमें क्या होता है, भले आरडीएस में आपका डेटा मतलब कि एक मिनट आपको थोड़ा पेंट में बताऊं तो विल बी बेटर फॉर यू। तो अगर आप जानते हो कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या है, कि आपकी ये मास्टर की मशीन है और बहुत सारी स्लेव मशीन है, रैक में रखी है वो या कहीं पे भी रखी हो, ये आपकी बहुत सारी स्लेव मशीन है। तो इसमें होता क्या है कि आपका, भले आरडीएमएस की बात कर रहा हूँ, अगर जैसे कि आप जब डेटा स्टोर करते हो तो आपकी मल्टीपल मशीन में डेटा स्टोर हो रहा है। लेट सपोज किसी की अगर 1 टेराबाइट की फाइल है, मतलब किसी का मतलब 1 जीबी का डेटा है। अब वो 1 जीबी का डेटा आपका मान लो यहाँ पे कुछ स्टोर हो गया है ना, यहाँ पे 250 कम से कम 250 MB का डेटा यहाँ स्टोर हो गया, और यहाँ पे स्टोर हो गया 250 MB का डेटा, है ना। ऐसे ही करके 4-5 है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब प्रोसेसिंग की बात आती है ना, तो क्या करते हैं, ये सारा डेटा उठा के ना, ये सारा का सारा डेटा उठा के ये इसी मशीन में वापस लेके आते हैं और यहाँ पे काम होता है। तो ये सेंट्रलाइज है। ये इस तभी तो इस मशीन की कंप्यूटिंग पावर इतनी हाई होती है ना, कि कोई बंदा परचेज करेगा ना इस मशीन को, कम से कम 15-20 लाख की तो ये मशीन ही आती है, ये सर्वर ही खरीदना पड़ जाता है। तो ये इसमें सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग है। भले डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर है, लेकिन इनमें क्या होता था कि प्रोसेसिंग जब होती थी, एक सिंगल मशीन में आता था डेटा, वहां पे प्रोसेसिंग होती है। और ये अपना बहुत सारा टाइम, अपनी कंप्यूटिंग पावर सारा वेस्ट करते थे डेटा को ट्रांसफर करने में। हडूप इनसे उल्टा था, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड था, अगर उसमें भी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर ही होता था,
वो अपना डेटा सारी मशीनों में लाइक स्टोर करता था डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। लेकिन भाई उसमें क्या होता था, जब प्रोसेसिंग की बारी आती थी कि मान लो किसी बंदे को अपने डेटा पे प्रोसेसिंग करनी है और उसका डेटा मान लो इन मशीनों में पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका डेटा, यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ डेटा पड़ा हुआ है, तो ये डेटा इन्हीं मशीनों में रहता था भाई। क्या होता था इसमें ना, आपका कोड कंप्यूटिंग को भेजा जाता था, जो आपने बिजनेस लॉजिक बनाया है यहाँ भेजा जाता था इस डेटा पे। ये मान लो आपने कोई कोड या एप्लीकेशन बनाई है, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, माई एप्लीकेशन, तो ये क्या करते थे, इन मशीनों में एप्लीकेशंस को भेजते थे और फिर ये इन डेटा पे प्रोसेस करता था। जिस मशीन में जो डेटा रखा हुआ है वो उसी डेटा को प्रोसेस करता था। तो सोचो इसमें इस मशीन को भी आप चाहे नॉर्मल रखो इसका, तब भी आपका काम चल जाता था, क्योंकि कोई कोई स्पेशलाइज हार्डवेयर की जरूरत नहीं थी इनमें। यार इन सबको स्पेशलाइज हार्डवेयर की जरूरत थी, अपना आधा टाइम तो वेस्ट करते थे, डेटा को ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर करते रहते थे। और यहाँ पे तभी तो आरडीएमएस में जो भी होता था सब नेटवर्क में होता था, यहाँ पे डिस्क में होता था, जहां डेटा पड़ा है वहीं पे ही उन डेटा पे प्रोसेसिंग होंगी, फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा वो सेंड हो जाता था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करता था और आरडीएमएस था आपका वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग पे डिपेंडेंट था। ओके, सो टिल हियर एनीवन एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो एनीवन? यार जितनी तुम क्वेश्चनिंग करोगे ना उतना बेनिफिट है। और मैं आपको ना हर सेशन के बाद कुछ आगे के टॉपिक दूंगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उनको पहले ही से पढ़ के आना, तो यू कैन आस्क मी एज मच एज क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने ये रक्षित इन सबको बता रखा है कि आप लोग मतलब इस वे में आप लोग कर सकते हो कि कल मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आप लोग प्रिपेयर पहले से यूट्यूब में उनके साथ बारे में पूरा वीडियो देखो, कहीं से भी पढ़ो, अपने क्वेश्चंस लिखो, फिर जब मैं पढ़ाऊँ तो आप मेरे से क्वेश्चन करो। अगर आप मेरे से आर्गू करोगे ना, जितना जितना डिस्कशन होगा ना उतना आप लोगों की क्लियरिटी आएगी भाई। तो आज तो फर्स्ट सेशन है, कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा हम कल क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले ही से पढ़ के आओ तो आप लोग मेरे से फिर क्वेरी क्वेश्चन डिस्कशन सब कर सकते हो। आर वी गुड टिल हियर? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. this is a basic disadvantage. So let's jump into Hadoop. So I hope कि Hadoop ये छोटा सा हाथी का बच्चा है. There are lot of stories behind it, कि काफ़ी stories हैं इसके पीछे कि इसका नाम Hadoop क्यों पड़ा, क्या रीज़न था, और already we know that कि Hadoop क्यों आया मार्केट में. There we have a lot of benefit, advantage and all that. Okay, so what is Hadoop? So basically, a Hadoop is an open source software framework designed for storage and processing of large scale data on a cluster of commodity hardware. मतलब ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है लार्ज स्केल ऑफ क्लस्टर में, कॉमोडिटी हार्डवेयर के बने होते हैं। एंड अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में वो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था। मतलब गूगल के पेपर थे पब्लिश किए हुए थे, जीएफएस बोलते हैं, गूगल फाइल सिस्टम। और फिर एक बंदा था डक कटिंग था, जो कि एक्चुअल में हडूप का फाउंडर है या क्रिएटर है, जिसने हडूप को पिक्चर में लाया। उसने ये जीएफएस फाइल सिस्टम पढ़ा था कि गूगल इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैसे स्टोर करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तभी अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। एनएफएस का प्रोजेक्ट था इसका। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे ना आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी डक कटिंग के बारे में, विकीपीडिया में, कि ये है डक कटिंग, ये हडूप का फाउंडर है। इसके बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट थे, ल्यूसन के नच का प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। एंड इसका वेब क्रॉलर का प्रोजेक्ट था ये। आप यहाँ पे देखोगे कि डक कटिंग एंड कैफलेरा ऑल्सो को फाउंडर ऑफ अपाचे हडूप। सो तो ये बेसिकली इन लोगों ने हडूप को इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। तो 2006 में मतलब पहले इसने अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया था ये जीएफएस, कि कैसे हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर कर सकते हैं। फिर 2004 में गूगल ने एक और पेपर पब्लिश किया था, दैट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस। तो उन लोगों ने सारा मैप रिड्यूस C++ लैंग्वेज में लिखा था। डकट ने, इनकी टीम ने पूरा का पूरा जो मैप रिड्यूस का कंसेप्ट था वो जावा में लिख दिया था, बैकएंड में पूरा का पूरा जावा में। ऐसा नहीं है कि जावा में लिखा है तो आप लोगों को जावा आना जरूरी है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो जावा का पूरा फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन किया था वो जावा में किया था उन लोगों ने पूरा का पूरा। सो
इसने अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया। फिर अप्रॉक्स 2006 के अराउंड याहू ने डक कटिंग और कैफलेरा को अपनी कंपनी में जॉब दी थी, हायर कर लिया था, और दे स्टार्टेड वर्क ऑन 4000 नोड ऑफ नहीं 1000 नोड ऑफ क्लस्टर। इन लोगों ने 1000 नोड का एक क्लस्टर बनाया एंड दे सक्सेसफुली स्टोर दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड सक्सेसफुली प्रोसेस दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और फिर उसके बाद बात आई कटिंग, मतलब इसका नाम हडूप कैसे पड़ा कि एक दिन देख रहा था वो डक कटिंग कि उसका बेटा एक टॉय से खेल रहा है जो कि हाथी का बच्चा है, हाथी के बच्चे को कहा जाता है जनरली हडूप। तो देखा वो येलो कलर का टॉय है, वो साइज में भी बिगर है, मतलब कितना खाना प्रोसेस करता है। तो जैसे आपने देखे एंड्रॉयड के फ्लेवर सारे चॉकलेट ही रहते हैं, सारे डोनट पता नहीं कौन कौन से उसके वर्जन आते रहते हैं, वैसे इन लोगों ने सोचा एनिमल फ्लेवर्स देख ले। तो वैसे ही आप देखोगे इसमें, तो इन लोगों ने इसका नाम हडूप दे दिया, मतलब सॉल्यूशन का नाम। और हडूप के दो मेजर कंपोनेंट बनाए, जैसे जीएफएस था गूगल फाइल सिस्टम, इन लोगों ने एचडीएफएस बनाया, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और प्रोसेसिंग के लिए मैप रेड्यूस बनाया। स्टार्टिंग में मैप रेड्यूस ही, मतलब बिग डेटा में जो डेटा स्टोर करते थे वो मैप रेड्यूस के थ्रू ही करते थे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग, मैप रेड्यूस जनरली प्रोसेसिंग करता था डेटा, एक फ्रेमवर्क था, और उसकी कोडिंग आप से स्टार्टिंग में जावा में कर सकते थे, बाद में फिर पाइथन इंट्रोड्यूस कर दी गई थी कि पाइथन से भी आप उसकी कोडिंग कर सकते हो। तो जनरली ये हडूप है, हाँ, मतलब एलिफेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लार्ज डेटा दैट कैन बी स्टोर एंड प्रोसेस बाय अ हडूप। हडूप के आर्किटेक्चर की बात करें, हडूप के आर्किटेक्चर में अगर हम हडूप के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, अगर आप मार्केट में देखोगे हडूप के बहुत सारे वर्जन आ गए। अभी तो 3 वाला भी चल रहा है। अगर आप अपाचे की वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हो अपाचे हडूप, तो अपाचे हडूप में यहाँ जाओगे ना तो आपको यहाँ पे हडूप का डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से। देखो बहुत सारे, अभी तो 3rd वाला चल रहा है। और अगर आप इसके यहाँ जाओ अपाचे रिलीज आर्काइव में, तो यहाँ पे आप हडूप के देखो 0 से पड़े हुए वर्जन है, 0 0 0, इनमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। 1 2 ये सारे के सारे पैकेज पड़े हुए हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो जब हडूप 1 था मार्केट में, तब हडूप के 2 ही मेन कंपोनेंट हुआ करते थे। क्या 2 मेन कंपोनेंट हुआ करते थे, एक होता था आपका ये एच डी एफ एस, और दूसरा मैप रिड्यूस होता था। तो जब तक हडूप 1 था ना मार्केट में भाई, इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब क्योंकि एक्चुअली में क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड था। मतलब कि आपको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा ये चीज़, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हडूप 1 क्यों नहीं इतना पॉपुलर था। तो रीज़न क्या था कि जैसे कि ना अगर आप हडूप का इकोसिस्टम देखो, सबसे नीचे आता है आपका एच डी एफ एस, और उसके ऊपर आता है प्रोसेसिंग लेयर दैट इज कॉल्ड मैप रेड्यूस। तो क्या होता था कि ये आपका एच डी एफ एस है, मान लो आपने सपोज अपना डेटा स्टोर कर लिया एच डी एफ एस में। एच डी एफ एस का मतलब यहाँ बहुत सारे क्लस्टर रैक मशीनें हैं, और आपकी प्रोसेसिंग लेयर होगी आपकी मैप रेड्यूस। अब मैप रेड्यूस के थ्रू पे प्रोसेसिंग कर रहे थे, है ना। तो मैप रेड्यूस एक फ्रेमवर्क है, इसकी कोडिंग की जाती है। तो अदर टूल्स जो बने थे ना, जैसे कि हाई पेग, तो ये ऑन टॉप ऑफ मैप रेड्यूस थे। मतलब भले आप हाई में एक सीक्वल क्वेरी लिख रहे हो, या पिग में आप कुछ भी लिख रहे हो, आपने मान लो हाई में एक सीक्वल क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो बैकएंड में वो आपकी सीक्वल क्वेरी को मैप रिड्यूस में कन्वर्ट करता था, तब जाके आप इस डेटा पे प्रोसेसिंग कर सकते थे। सेम एज पिग, पिग में आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, आपने कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखी, भले आप जैसे मैप रिड्यूस में 100 लाइन्स का कोड लिख रहे हो, पिग में आप 5 लाइन का लिखो, हाई में आप 2 लाइन का कोड लिखो, तो ये कोड को और रिड्यूस कर रहे थे। लेकिन इनके बैकएंड में अल्टीमेटली ना मैप रिड्यूस ही था, कि मैप रिड्यूस का ही फ्रेमवर्क था, और ये बहुत ज्यादा टाइटली कपल थे यार कि। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे कि मतलब मार्केट में और भी ऐसे फ्रेमवर्क थे ना उस टाइम पे, जैसे कि स्पार्क था। स्पार्क बहुत ही मतलब फास्ट प्रोसेसिंग टेक्निक थी। ऐसे इम्पाला था, बहुत सारे अदर प्रोसेसिंग टूल थे। तो वो लोग ना हडूप से इंटरेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इनका अपना फाइल सिस्टम नहीं होता, ये किसी से डेटा लेते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं इनका अपना। ये मतलब वैसी चीज थी, मतलब कि इनका प्रोसेसिंग का तरीका मैप रिड्यूस की तरह थे, जैसे मैप रिड्यूस हेल्प कर रहा है, वैसे इनका अपना टेक्निक थी, प्रोसेसिंग की टेक्निक थी। तो ये इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे मतलब एच डी एफ एस से, क्योंकि ये टाइटली कपल था बहुत ज्यादा, कि मतलब अगर आपको कुछ करना है तो आपको मैप रिड्यूस से होते हुए जाना है एच डी एफ एस में। तो हडूप वन इतना पॉपुलर नहीं था मार्केट में, जब मैंने लर्न भी किया था उस टाइम पे तो इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन जब 2013-14 के करीब ना हडूप 2 आया मार्केट में भाई, उसके बाद हडूप की डिमांड बढ़ गई। रीजन क्या था हडूप की डिमांड बढ़ने का? रीजन क्या था? जस्ट
रीजन क्या था कि ये मान लो HDFS की लेयर है, ये मैप रिड्यूस की लेयर है, ये आ जाता था यान। यान जनरली आपका रिसोर्स मैनेजर था, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। यान आपका येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर था, और ये मैप रिड्यूस है, आपका मैप रिड्यूस है। तो अब जो नॉन नॉन मैपार एप्लीकेशन थे, लाइक जैसे कि स्पार्क, इम्पाला, ग्राफ, तो ये क्या करते थे, ये लोग ना अब हडूप से डेटा लेते थे और उस पर प्रोसेसिंग कर लेते थे। अब ये क्या किसके थ्रू करते थे, ये लोग क्या करते थे, यान के थ्रू लेते थे। यान एक रिसोर्स नेगोशिएटर था। इवन मैप रिड्यूस को भी अब यान के थ्रू ही हडूप से डेटा लेना पड़ता था। अगर आप मैप रिड्यूस एप्लीकेशन बना रहे हो तो यान एक येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर था, जिसमें आप मतलब यान के थ्रू ही आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो हडूप 2 जब मार्केट में आया तो ये भाई बहुत पॉपुलर हो गया था, कि मतलब नॉन मैपार एप्लीकेशन थे। इसका मतलब ये समझ लो गाइस, स्पार्क इंडिपेंडेंट है। अगर आप कल के दिन अगर स्पार्क सीख भी लेते हो तो जरूरी नहीं है आपको हडूप आना जरूरी है। तो स्पार्क आप एक इंडिविजुअल है, यानी अगर कल के दिन उसको AWS बोलता है मेरा फाइल सिस्टम यूज करो, तो स्पार्क वहां चले जाएगा, उसको मतलब नहीं है। तो लेकिन आज के डेट में हडूप बेटर इसलिए था कि ये एक अच्छा स्टोरेज सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा था। स्पार्क को घुसना था इसके साथ, तो उसने यान के थ्रू अब डील करता था इससे, कि यान का काम है सिर्फ रिसोर्स एलोकेट करना, डेटा ये सारा प्रोसेसिंग करना, सब यान का। पहले क्या था, मैप रिड्यूस का ही ये काम था। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं रीजन बताना चाह रहा था कि यान क्यों आया। सो अब जो हडूप के आर्किटेक्चर में तीन बेसिकली कंपोनेंट है, वो है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस, एंड द थर्ड वन इज हडूप यान। सो हडूप यान तीसरे में आया है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है, हडूप मैप रिड्यूस क्या है, हडूप यान क्या है ना। तो मतलब 50% तो पूरा HDFS है, फिर उसके बाद 50% आपका पूरा मैप रिड्यूस और यान है। वी विल डिस्कस इन अ डिटेल दिस थिंग्स, ओके। कि HDFS क्या था और मैप रिड्यूस क्या था, यान क्या था। सो अगर हम देखें आज की डेट में कौन कौन सी कंपनी है, कुछ ही कंपनी मेंशन की है मैंने जो हडूप पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। JP मॉर्गन हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, सैमसंग, Amazon, ट्विटर, IBM, एवरीवन, फेसबुक, यानोमी, दीज आर द बिगेस्ट मतलब जो हडूप में आज की डेट में काम कर रहे हैं अच्छे से। सो HDFS की बात करें, सो HDFS क्या है, आपका एक हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसका टोटल कंसर्न सिर्फ किससे है, स्टोरेज से है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या है HDFS में। सो लेट मी चेक। सो अगर हम HDFS के बारे में देखें, हाँ, सो ये हम लोग HDFS से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी किसी को डाउट, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? अभिषेक, गौरव, सनी, लविस्ट, एनीवन हैविंग एनी डाउट? रक्षित, आशीष? सर जैसे हमने जितना हमें आइडिया था पढ़ा था, वो ये था कि हमारा HDFS रहता है, उसके बाद हम जो भी डेटा प्रोसेसिंग करते हैं वो मैप रिड्यूस से करते हैं। तो अब यान आ गया है, आपने जैसे बताया सर, हडूप 2 में यान आ गया है। तो यान हमेशा में मतलब कंपलसरी रहेगा, रिसोर्स मैनेजर उसके वो उसकी जो लेयर होगी वो HDFS और मैप रिड्यूस के बीच में रहेगी। एग्जैक्टली। तो यही फायदा होता है कि आप लोगों को अब कुछ चीज क्लियर हुई होगी, आपने भले अपने एंड पे पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एक चीज सर क्लियर होगी कि यान सर यान मेनली तो रिडंडेंसी के लिए आया था ना, मतलब जियो रिडंडेंसी के लिए। अगर उसका क्लस्टर डाउन हो रहा है, जैसे हडूप 1 में आपको क्लस्टर जियो रिडंडेंसी नहीं था, यान में इसको भी दिया है शायद। नहीं 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 नहीं, जो भी है मतलब मिसकंसेप्शन है इसको लेके। आप अगर इस स्लाइड को देखे जाओगे ना तो आपको और क्लियर होगा। मैप रिड्यूस, लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन रहता है इन सब चीज़ों को लेके कि यान का काम क्या एक्चुअली में। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा
यान को और दिखा देता हूँ, आप लोग भी अपने एंड पे जाना है इसको। सो इंट्रोडक्शन टू यान एंड मैप रिड्यूस 2। तो अगर हम बात करें ये एक ओवर बता रहे हैं क्या क्या, तो ओवरव्यू ऑफ मैप रिड्यूस 1 एंड 2। सो मैप रिड्यूस 1 की बात करें, जो कि हडूप 1 की बात कर रहे हैं, हैज अ 3 मेन कंपोनेंट। उनके पास 3 कंपोनेंट होते थे। एपीआई, जिसको बोला जाता था फॉर यूजर लेवल प्रोग्रामिंग फॉर एमआर एप्लीकेशन। आप कोई भी मैप रिड्यूस एप्लीकेशन बना रहे हो तो यूजर लेवल प्रोग्राम एपीआई बोला जाता था। दूसरा आता था फ्रेमवर्क, यानी मैप रिड्यूस अपने में एक फ्रेमवर्क था जो कि आपका सारा सफलिंग करना, मैपर, रिड्यूसर, प्रोसेसिंग, ये शॉर्टिंग वॉटिंग जितना भी करना, यानी मतलब मैप रिड्यूस बोलता था तुम प्रोग्राम दे दो, बाकी का काम मैं देखूंगा। चाहे मशीन 10 मशीनों में डेटा पड़ा है, उसकी सफलिंग करनी है, मैप रिड्यूस जॉब चलानी है, सारा फ्रेमवर्क का काम होता था। तीसरा काम था रिसोर्स मैनेजर। मतलब अब 10 मशीनों में डेटा पड़ा हुआ है तो उन मशीनों में कितने कंटेनर बनेंगे, कितने मैपर बनेंगे, कितने रिड्यूसर बनेंगे, सारा का सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम। मतलब मैप रिड्यूस तीनों काम देखता था। रिसोर्स मैनेजमेंट भी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर टू मॉनिटर नोड्स, एलोकेट रिसोर्सेज एंड शेड्यूल जॉब्स, ये सारा का सारा काम रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता था। तो हडूप वन जो मैप रिड्यूस वन जो क्लासिक होता था, उसका वो तीनों का तीनों काम होता था देखने के लिए। अब एक बात कर, अगर एक इंसान को 10 आदमी देखने के लिए बोल दिया जाए कि तू मॉनिटर करने को लिए, कितना हेडेक वाला है एक मशीन को। मतलब अगर नॉर्मली मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट की और मेरे कम से कम 10 टास्क ट्रैकर बन गए, लेट्स टेक अ एग्जांपल कि मैंने अपनी एक जॉब सबमिट की और 10 टास्क ट्रैकर बन गए, तो एक प्रोडक्शन क्लस्टर में कम से कम 4000 जॉब चलती है यार। तो 4000 इंटू 10 कर तो 40,000 मशीन, मतलब तेरे मैपर, रिड्यूसर ओवर द नेटवर्क चल रहे हैं। तो इनके लिए पता है बहुत ज्यादा सिंगल पॉइंट फेलियर होने का काम हो जाता था। मतलब कभी कभी क्या होता था, वो मशीन ही डाउन हो जाती थी यार, बहुत ज्यादा फेलियर होते थे। मतलब ये बहुत सारी दिक्कत थी। मतलब 4000 मशीनों को मॉनिटर करना, फिर उनकी देखना क्यों नहीं चल रही है, चल रही है तो उनके पैरेलल हम क्या कर सकते हैं। मतलब सिंगल पॉइंट फेलियर बहुत होते थे यार हडूप वन में, तो इसलिए उसको ज्यादा प्रिफर नहीं किया जाता था। तो ये जो, और इसके अलावा और भी रीजन थे, स्लाइडों में आगे बताएगा कि मतलब कि हमें मैप रिड्यूस ही यूज करना पड़ता था क्लासिक वन में। लेकिन यहाँ पे अगर देखेगा नेक्स्ट जनरेशन मैप रिड्यूस 2, तो उसमें क्या किया, मैप रिड्यूस 1 में तो तीनों पार्ट थे, एपीआई, फ्रेमवर्क और रिसोर्स मैनेजमेंट। जब मैप रिड्यूस 2 आया तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब जो तुम मैप रिड्यूस प्रोग्राम बना रहे हो और जो फ्रेमवर्क का काम है वो मैप रिड्यूस देखेगा, जो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होगा वो सारा का सारा यान देखेगा। मतलब भाई तुमने जॉब सबमिट कर दी, अब क्लस्टर में उस जॉब के करस्पॉन्डिंग डेटा कहाँ कहाँ रखा है, कितने कंटेनर बनेंगे, कितने, हर कंटेनर को कितनी रैम देनी है, कितने रिसोर्स देने, सारा का सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम था। पहले क्या होता था कि 4000 एप्लीकेशन पर एक ही मास्टर काम कर रहा है, वो जो कि जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर बोला जाता था। तो सारा का सारा काम जॉब ट्रैकर देखता था। जब हडूप 2 आया तो 4000 एप्लीकेशन है तो 4000 तुम्हारे एप्लीकेशन मास्टर होंगे, यानी हर एक एप्लीकेशन पर एक एप्लीकेशन मास्टर होगा जो कि मॉनिटर करेगा, मतलब अपनी जॉब को अपनी। और जब वो जॉब कंप्लीट हो जाती थी वो एप्लीकेशन मास्टर अपने आप को किल कर देते थे। अगर यहाँ पे आगे देखेगा, ये हडूप 2 हडूप 1 है, तो यहाँ पे अगर यान का आर्किटेक्चर देखेगा तो यहाँ पे देखेगा व्हाई इज यान नीडेड, यान की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैप रिड्यूस 1 रिसोर्स मैनेजमेंट इशू, उनको बहुत ज्यादा इशू था कि क्या होता था कि मान ले एक मशीन है, एक मशीन में डेटा बहुत कम रखा हुआ है, लेकिन वहां एक मैप रिड्यूस एप्लीकेशन जनरेट हो गई और उसने ही सारी की सारी रैम खा ली उस मशीन की, और मतलब और सारे का सारा रैम खाली। अब और दूसरी एप्लीकेशन आई, उसका भी डेटा वहां रखा हुआ था। अब जब तक वो वाली जॉब खत्म नहीं होगी तब तक ये वाली को क्यू में रहना पड़ जाता था। मतलब मतलब रिसोर्स का, ये लोग रिसोर्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक छोटी सी भी डेटा सेट पे भी पूरे के पूरे रैम यूटिलाइज कर रहे थे। फिर ये सारा का सारा काम यान के अंदर एप्लीकेशन मास्टर देखता था कि भैया इतना डेटा पड़ा है, ठीक है, इतनी रैम दे दो इस मशीन से। अब मान लो 6 GB का रैम का वो हार्डवेयर है, 2 GB रैम उसके डेटा को दे ले, अभी भी 4 GB रैम फ्री है, तो कल के दिन अगर कोई दूसरी जॉब आएगी, उसका अगर डेटा वहां पड़ा है तो वो उसको एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल slot configured on the node map are reduced, not both. तो underutilization of the cluster when more map are reduced task are running, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब क्लस्टर का प्रॉपर्ली यूज ही नहीं हो पाता था, पूरे रिसोर्सेज का यूज नहीं होता था। सेकंड थिंग, कैन कांट शेयर रिसोर्सेज विद नॉन मैपर एप्लीकेशन। मतलब मैप रिड्यूस के अलावा अगर कोई और एप्लीकेशन है जैसे इम्पाला, ग्राफ, स्पार्क, ये कभी यूज ही नहीं हो पाती थी भाई। ये बहुत फास्ट होते थे, ये मेमोरी में काम करते थे ये इम्पाला में। तो कैन नॉट शेयर रिसोर्सेज विद नॉन मैपर एप्लीकेशन रनिंग ऑन हडूप क्लस्टर।
स्केलेबिलिटी, वन जॉब पर क्लस्टर, वन जॉब ट्रैकर पर क्लस्टर, मतलब एक क्लस्टर में 4000 एप्लीकेशन को मॉनिटर करता था एक जॉब ट्रैकर। तो लिमिट ऑफ अबाउट 4000 नोड पर क्लस्टर। तो सोच, सिंगल पॉइंट फेलियर, चोकिंग कितनी कारण हो सकते हैं कि ये फेल हो जाएगा भाई। उसके बाद क्या है, यान सॉल्यूशन आया, नो स्लॉट, नोड हैव रिसोर्सेज, मेमोरी एंड सीपीयू। तुझे पता है एक मास्टर है, बहुत सारी स्लेव है, तो उन स्लेव मशीनों के पास उनका मेमोरी है, उनकी सीपीयू कोर है, विच आर एलोकेटेड टू द एप्लीकेशन व्हेन रिक्वेस्टेड। जब उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा तभी वो उनको मेमोरी और सीपीयू कोर एलोकेट किया जाएंगे। अगर 2 बोला जा रहा है तो 2 दिए जाएंगे, 4 बोला जा रहा है तो 4 जा रहा है। तो सपोर्ट एमआर एंड नॉन एमआर एप्लीकेशन रनिंग ऑन द सेम क्लस्टर। मोस्ट जॉब ट्रैकर फंक्शन मूव टू एप्लीकेशन मास्टर, मतलब जॉब ट्रैकर का जो काम था कि मॉनिटरिंग करना, सब कुछ करना, है सब एप्लीकेशन मास्टर देखने लग गया। वन क्लस्टर कैन हैव मैनी एप्लीकेशन मास्टर, मतलब अगर 4 एप्लीकेशन है तो 4 के लिए 4 एप्लीकेशन